صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلا اس سورہ میں ہم نے پڑھیں گے جو پہلا ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے پڑھ۔ اللہ علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آخر میں اس سورہ میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو اس سورہ میں سب سے آخری آیت پر سجدہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو ہم آخر میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس سے پہلے ہم اس کو تجوید اور قواعد کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد آخر میں ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہی پڑھنا ہے، اقرا نہیں پڑھنا، اقرا، یہاں پر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اقرا بسمی، بسمی ربکل، را کو پڑھنا ہے موٹا، را با زبر رب، با زیر بی، ربی، کاف لام زبر کل، بیچ میں الف ہے اس کو نہیں پڑھنا ہے، کاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، کل لام زبر لا، زالیہ زیر دی، ربک الذی، زال کو پڑھنا ہے باریک، زال یا زیر دی کھینچیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مد ہو رہا ہے، لذی خلق، خلق، خا کو پڑھنا ہے حلق کے سب سے اوپر والے سے، ٹھیک ہے؟ خا، لا قاف ساکن ہو جائے گا تو قاف پر کلکلا، ٹھیک ہے؟ خلق، خلق۔ تب اس کے بعد پھر سے ہم دوسرا جو آیت سٹارٹ کریں گے، پھر سے خلق سے سٹارٹ ہو رہا ہے، خلق پر ختم ہوگا پھر خلق سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ خلق، قاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، خا زبر کھا، لام زبر لا، قاف لام زبر قل، خلقل، قاف کو لام کے ساتھ ملانا ہے، خلقل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زیر سا، نون زبر نا، خلقل انسان، ٹھیک ہے؟ نون کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ہے گنا کرنا ہے، انسان، حمزہ نون زیر ان، سین الف زیر سا، نون زبر نا، انسان، میم نون زیر من، عین زبر آ، لام زبر لا، قاف دو زیر قن، القن، اور وقف کریں گے تو ہوگا الق، ٹھیک ہے؟ یہاں ہوگا اظہار، پڑھیں گے من علق، عین کو حلق سے نکالنا ہے، علق، علق، خلق الانسان من علق، ٹھیک ہے؟ یہاں ہوگا اظہار، یہاں ہوگا اخفا، اقرا، یہاں جھٹکے کے ساتھ، اقرا، وربکل، وربکل اکرم، ٹھیک ہے؟ اکرم، اک طرح سے کیا جاتا ہے ہمس، اکرم، را کو موٹا پڑھیں گے، میم ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر میم کو ساکن پڑھیں گے، پیش نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر ہم وصل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر الف کے اوپر کوئی بھی حرکات نہیں لگی ہے تو یہاں پر کیا لگائیں گے؟ زبر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لام ہو اس کے بعد میں اس پر زبر ہے تو یہاں پر بھی زبر لگانا ہے، حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، زال یا زیر زی، الذی، الذی، عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اللہ، عین لام زبر ال، لام زبر لا، عین کو حلق سے نکالنا ہے، اللہ، ما، علم، الذی علم، علم، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آ پڑھنا ہے، یہاں پر آ پڑھنا ہے، یہاں پر عین اور یہاں پر آ، ٹھیک ہے؟ الذی علم، علم، یہاں پر آپ کو حلق سے نکالنا ہے اس کو، عین کو، علم، الذی علم بالقلم، با لام زیر بل، قاف زبر کا، لام زبر لا، میم ساکن ہو جائے گا تو پڑھیں گے میم ساکن کو کس طرح پڑھیں گے؟ لام کو میم کے ساتھ ملائیں گے، لم، الذی علم، علم بالقلم، بالقلم، قاف کو موٹا، قلم، قلم، بالقلم، عین لام زبر ال، لام زبر لا، میم لام جمل، علم انسان، یہاں بھی ہمیں کرنا ہے اخفا، حمزہ نون زیر ان، شین الف زیر سا، نون زبر نا، انسان، علم الانسان، ٹھیک ہے؟ یہاں پر کرا جائے گا اخفا، انسان، معلم، یعلم، یا عین زبر یا، لام میم زبر لم، تو یہاں پہلے سے ساکن ہے تو ہمیں ساکن نہیں کرنا، پہلے ساکن ہے، ساکن نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا،
ठीक है। यहाँ पर मध्य मुनफसिल है, खींचा जाएगा 3 सेकंड के लिए। काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ जबर ला और मद साथ में, तो 3 सेकंड खींचेंगे। कल्ला, काफ को पढ़ना है बारीक, यहाँ पर हमें काफ मोटा पड़ा था, कौफ, यहाँ पढ़ना है काफ, ठीक है। काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ जबर ला, कल्ला इन्नल, यहाँ पर पहले गुन्ना करेंगे, ठीक है, उसके बाद नून को लाम के साथ मिलाएंगे, ठीक है। कल्ला इन्नल इंसाना, ठीक है, गुन्ना करना है, उसके बाद नून को लाम के साथ मिलाना है। इन्नल इंसाना, यहाँ पर करना है इख्फा, इंसाना, लाम जबर ला, या तो जबर या, तो गाइन खरा जबर गा, ला या तो गा, तो पर करना है हमें कलकला, ठीक है। या तो गा, गाइन पर खरा जबर है, साथ मद भी है, यहाँ पर खींचना है, ठीक है। इंसाना ला यतगा, ला यतगा, तो पर कलकला, गाइन को मोटा, हाथ में खरा जबर, यहाँ मद, सबको हमें वाजे करके पढ़ना है, ठीक है। हमजा नून रा जबर अर, रा जबर रा, अर्रा, ठीक है। यहाँ पर नून की आवाज नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बगैर गुन्ने के इदगाम होगा, ठीक है। हमजा रा जबर अर, रा जबर रा, अर्रा, हमजा खरा जबर आ, अर्रा, आ, हा सिन पेश हुस, अर्रा आ हुस, तगना, अर्रा आ हुस, हा सिन पेश हुस, ता गैन जबर तग, नून खरा जबर ना, अर्रा, रा को मोटा पढ़ना है, अर्रा आ हुस तग ना, ठीक है। गाइन मोटा ता के साथ मिलेगा, तग ना को खींचा जाएगा, खरा जबर है, वफ की सूरत में यहाँ पर साकिन नहीं होगा, ठीक है। खरा जबर को खरा जबर ही पढ़ा जाएगा वफ की सूरत में, और वसल की सूरत, दोनों सूरतों में खरा जबर को बदलते नहीं है, यहाँ पर उसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर नून की आवाज को नहीं निकालना है, नून को नहीं पढ़ना है। हमजा रा जबर अर, रा जबर रा, अर्रा आहुस, अर्रा आहुस तगना, अर्रा आहुस तगना, तगना, ठीक है। तग, गाइन को मोटा पढ़ना है, तगना, अर्रा आहुस, हा को पढ़ना है भारी आवाज में, हा सिन पे हुस, अलिफ नहीं पढ़ना है, हुस तगना, अर्रा आहुस तगना, अर्रा आहुस, आ को खींचना है, आ हुस, अर्रा आहुस तगना। अब हमारा 8 नंबर आयत, हमजा को नून के साथ मिलाना है, यहाँ पर गुन्ना करेंगे। इन्ना इला रब्बिका, रा बाजबर रब, बाजिर भी, काफ राजबर कर, रब्बी कर, रुजआ, काफ राजबर कर, रा जिम पेश रुज, काफ राजबर कर, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ना है, काफ को रा के साथ मिलाना है, कर, रुज, रा जिम पेश रुज, जिम पर कलकला होगा, रुज, आइन खरा जबर आ, रुज आ, रुज आ, ठीक है। आइन को खींचना है, खरा जबर को खींचेंगे, वफ की सूरत में दोनों में, यहाँ पर वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। इन्ना इला रब्बिका, रब्बिकर, रब्बिकर रुजआ, रब्बिकर, कर रुजआ, ठीक है। काफ को मिलाना है रा के साथ, कर, अलिफ नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना, जिसके ऊपर हरकत नहीं हो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर तस्दीद है, पिछले वाले हुर्फ के साथ मिलाना है इसको, ठीक है। रा को काफ रा जबर कर, रा जिम पे रुज, जिम पर कलकला हो जाएगा, रुज, आइन खरा जबर आ, आइन को हलक से निकालेंगे, आ, इस तरह पढ़ेंगे। इन्ना इला रब्बिकर रुजआ, रब्बिकर रुजआ, ठीक है। रा मोटा, रब्बी कर, रा भी यहाँ भी मोटा, रब्बिकर रुजआ, इन्ना इला रब्बिकर रुजआ, रब्बिकर रुजआ, ठीक है। तो बार बार इसको रिपीट करेंगे, तो आपको अगर याद करनी है तो बार बार कम से कम 10-12 बार आप रिपीट करेंगे, ठीक है। और उसको वाजे कर पहले समझेंगे कि किस हुरूफ को किस तरह अदा करनी है, उसके बाद आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर गुन्ना करना होता है, जब भी नून के ऊपर तस्दीद हो गुन्ना करेंगे, इन्ना, इस तरह पढ़ेंगे, 2 सेकंड के लिए गुन्ना करेंगे। इन्ना, नून के ऊपर जबर है, पहले जबर की जेर के साथ, इन, उसके बाद ना, इन्ना इला, ला को खींचना है 2 सेकंड के लिए, इला, रा को पढ़ना है मोटा, और रा बा जबर, बाजिर भी, रब्बी, काफ को रा के साथ मिलाएंगे,
जब भी तस्दीद हो पिछले वाले हुरूफ के साथ मिला के पढ़ते हैं, ठीक है। काफ को रा के साथ मिलाएंगे, काफ रा जबर कर, रा जिम पेश रुज, कर रुज, आइन खरा जबर आ, कर रब्बी कर रुज आ, जिम पर कलकला होगा, 5 हुरूफों पर कलकला होता है, ठीक है। कलकला के हुरूफों के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। तो कलकला के बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है। जीम पर होगा, 5 हुरूफों पर कलकला होता है, काफ, तो, बा, जीम और दाल, ठीक है। तो यहाँ पर जीम है तो यहाँ कलकला करेंगे, रुज आ, इन्ना इला रब्बिकर, रब्बिकर रुज आ, ठीक है। हमजा जबर आ, रा जबर आ रा, हमजा या जबर आई, आ रा आई, ता जबर ता लाम जबर तल, आ रा आई तल। यहाँ होगा लीन, या के साकिन से पहले जबर है, हमजा या जबर आई पढ़ेंगे, आई, ठीक है। आई ता, आ रा आई ता, ठीक है। लीन के हुरूफ को नीचे की तरफ खींच के पढ़ते हैं और जल्दी पढ़ना है, और यहाँ पर लीन किया जाता है। हमजा या जबर आई, ता लाम जबर तल, आ रा आई तल, अरअयतल्लज़ी, लाम जबर ला, जालिया ज़ेर को खींचेंगे 2 सेकंड के लिए, या साकिन से पहले ज़ेर हो, या मद, लज़ी यनहा, या नून जबर यन, हा खड़ा जबर हा, यन हा, यहाँ करा जाएगा इजहार, ठीक है। इजहार क्यों करेंगे? जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद ये 6 हुरूफ आएंगे तो आप क्या करेंगे? इजहार करेंगे नून को, यन हा, ठीक है। नून को वाजे करके पढ़ना है, इसको कहा जाता है इजहार। जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हा है या इसके अलावा ये 6 हुरूफ आएंगे तो वहाँ क्या करेंगे? इजहार करेंगे, यनहा, अल्लज़ी यनहा, अल्लज़ी यनहा, यनहा। तो इसके ऊपर हमने इक्फा किया था, यहाँ पर इक्फा किया था, नून की आवाज को हमने छुपा के पढ़ा था, इंसाना। यहाँ पर हमें क्या करना है? इजहार करना है, यनहा, वाजे करके पढ़ना है, यनहा, अल्लज़ी यनहा। तो इक्फा और इजहार और हुरूफ़े कलकला आप लोगों को समझ आ गई। अगर किसी को समझ नहीं आए तो कमेंट करें तो मैं फिर से समझा दूंगी, ठीक है। या नून को जबर यन, हा खड़ा जबर हा, अल्लज़ी यनहा, हा को भी खींचना है, जाल अली जालिया ज़ेर जी को खींचना है, ठीक है। या नून जबर यन को वाज़े करके पढ़ना है, आइन बा जबर अब, बा पर क्या होगा? कलकला हो जाएगा, ठीक है। कलकला क्यों होगा? तो कलकला वाले हुरूफ के अंदर बा आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम बा पर क्या करेंगे? आइन को बा के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर कलकला करेंगे, आइन बा जबर अब, दाल 2 जबर दन, अब दन। तो यहाँ क्या करेंगे? इजहार। तो अभी आपको हमने बताया नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की आ जाए तो वहाँ इजहार करते हैं। यहाँ हुरूफ़े हल्की आ गया तो तनवीन के बाद तो यहाँ भी करेंगे इजहार, जिस तरह यहाँ पर हमने इजहार किया। यहाँ करेंगे कलकला, आइन को हलक से निकालेंगे, अब दन, दन पढ़ेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हुरूफ़े हल्की है, ठीक है। हमजा ज़ेरी जाल अलिफ ज़र ज़ा, इज़ा अबदन इज़ा सल्ला, स्वाद लाम जबर सल, लाम खड़ा जबर ला, सल्ला, स्वाद को पढ़ना है मोटा, सल्ला, लाम को खींचना है, खड़ा जबर है, वफ की सूरत में यहाँ पर साकिन नहीं होगा, ठीक है। खड़ा जबर साकिन नहीं होगा, यहाँ पर देख सकते जितना भी खड़ा जबर है उसको उसी तरह पढ़ना है, नो चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ क्या करें हम? हुरूफ़े हल्की, तो ठीक है, हुरूफ़े हल्की एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक साथ 2 बार हुरूफ़े इजहार के लिए हुरूफ़े हल्की किस तरह किया जाता है तो आप देख सकते हैं। नून साकिन या तनवीन, तनवीन किसे कहा जाता है? 2 जबर 2 ज़ेर और 2 पेश, और नून साकिन, इन दोनों के साथ अगर ये 6 हुरूफ आएंगे तो हम वहाँ करेंगे इजहार। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसके साथ कौन सा हुरूफ आया? ये हा को क्या दुचस्मी हा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हा आया तो हम यहाँ पर दुचस्मी हा, और ये अलिफ आया, अलिफ को हम हमजा पढ़ते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा हम, ठीक है। तो अलिफ को क्या पढ़ते हैं? हमजा भी पढ़ते हैं जब इसके ऊपर कोई भी हरकत लग जाती है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? अबदन पढ़ेंगे, ठीक है। अबदन इज़ा सल्ला, यहाँ पर हमजा है, ठीक है। ये वाला हमजा को नहीं पढ़ेंगे, ये वाला हमजा को हम देखेंगे, ठीक है। तो तनवीन के बाद आप देख सकते हैं ये हमजा क्या है? हुरूफ़े हल्की के अंदर आ रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इजहार, अब दन,
अब दन, यानी नून की आवाज, यहाँ पर भी यन हा, यहाँ नून की आवाज आ रही है तो इसको कहते हैं इजहार करना, ठीक है। तो नून का हम इजहार करते हैं, हुरूफ हल्की इसे कहा जाता है। इन 6 हुरूफों को आप याद कर ले, हमजा हो या फिर अलिफ वाला हमजा हो, या तो ये हमजा हो और या तो ये वाला अलिफ के जो हमजा पढ़ते हैं वो वाला हमजा जिसके साथ कोई भी हरकत लगी हो तो उसे पढ़ते हैं हुरूफ हल्की। तो हम यहाँ करेंगे इजहार। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब दन, बा पर कलकला, दाल को इजहार, अब दन, अब दन, इज़ा सल्ला, इज़ा सल्ला, ठीक है। यहाँ पर जो अलिफ है इसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ जो अलिफ था इसे नहीं पढ़ना है और इस अलिफ को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है इसे, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हैं तस्दीद या साकिन नहीं है, तो हम ये इसको पढ़ेंगे जाल अलिफ जबर जा, जाल अलिफ जबर जा। तनवीन के बाद जो अलिफ होता है उसे नहीं पढ़ना होता, ठीक है। वसल की सूरत में उस अलिफ को नहीं पढ़ते हैं। तनवीन के बाद जो खाली अलिफ होता है उसे नहीं पढ़ा जाता, और जाल के जबर के बाद जो अलिफ है उसे पढ़िए जाल अलिफ जबर जा, जाल अलिफ जबर जा, और इस अलिफ को नहीं पढ़ना है, यहाँ इजहार करना है। अब दन इज़ा सल्ला, अबदन इज़ा सल्ला, ठीक है। स्वाद को मोटा पढ़ना है, हुरूफ मुस्ताल लिया है, स्वाद लाम जबर सल, लाम खरा जबर ला, सल्ला, ला को खींचना है, खरा जबर को खींचा जाता है, ठीक है। यहाँ पर होगा कलकला, अब, अबदन, अबदन इज़ा सल्ला, ठीक है, सल्ला। इस तरह जब की सूरत में जब खरा जबर पर आप वफ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम उसी तरह पढ़ेंगे, कोई चेंजेस साकिन नहीं बनाएंगे। जिस तरह दूसरे हुरूफ को साकिन बनाते हैं, खरा जबर को साकिन नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह पढ़ा जाएगा, जा जबर आ, रा जबर रा, और हमजा या जबर आई, ता जबर ता, और आई ता, ठीक है, आई ता। यहाँ करा जाएगा लीन, या साकिन से पहले जबर हो तो लीन किया जाता है। तो लीन के बारे में आप लोगों को पता है कि दो हुरूफों पर लीन होता है, या साकिन से पहले जबर या वाव साकिन से पहले जबर हो तो वहां पर लीन करते हैं। तो हमजा या जबर आई पढ़ेंगे, आई, ठीक है, हमजा या जबर आई, ता जबर ता, आई ता। तो बहुत से लोगों को लीन के बारे में भी पता नहीं। तो लीन के बारे में क्या है कि या साकिन से पहले जबर हो, कोई भी हुरूफ हो तो लीन करते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ खींच के पढ़ेंगे और जल्दी से अदा करते हैं। और उसके बाद वाव साकिन से पहले जबर हो तो वाव लीन करते हैं, ठीक है, वहां पर भी लीन करते हैं, जल्दी से पढ़ते हैं। तो लीन के बारे में जब आएगी तो आपको बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीन हो रहा है, वाव साकिन से पहले जबर, हमजा वाव जबर औ, यहाँ पर आ जाएगा हमजा वाव जबर औ, ठीक है, ये हो गया लीन, वाव लीन। दो तरह के लीन होते हैं, एक होता है वाव लीन, वाव साकिन से पहले जबर, तो वाव लीन, हमजा वाव जबर औ पढ़ेंगे, औ। और होता है या साकिन से पहले जबर, एक होता है या साकिन से पहले जबर, तो या लीन, या साकिन से पहले जबर है तो हमजा या जबर आई, ता जबर ता, अरा आई ता, अरा आई ता। हमजा नून जेर इन, काफ अलिफ जबर का, नून जबर ना। यहाँ पर नून साकिन के बाद काफ है तो यहाँ क्या होगा, इक्फा होगा। यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, हुरूफ हल्की हो तो इजहार करते हैं, नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा हो तो हम वहाँ क्या करते हैं, इक्फा करते हैं, ठीक है। हुरूफ इक्फा टोटल 15 है, तो उन 15 हुरूफों पर हमें क्या करना होता है, इजहार करना होता है, ठीक है। इक्फा वाले हुरूफ 15 है तो वहां पर हम क्या करेंगे, इक्फा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, नून साकिन के बाद, नून साकिन के बाद जब ये 15 हुरूफ आएंगे तो वहां हम करेंगे इक्फा, ठीक है। नून साकिन के बाद कौन सा हुरूफ है, काफ है, ठीक है, काफ है। तो 15 हुरूफों को आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो आप यहाँ क्या करेंगे, काफ है तो यहाँ इक्फा करेंगे, ठीक है। और यहाँ नून साकिन के बाद हा था तो हमने क्या किया, इजहार किया था, ठीक है। 6 हुरूफ आपको बताया था कि 6 हुरूफ हुरूफ हल्की होते हैं। इजहार होता है जब हुरूफ हल्की हो, जब नून साकिन के बाद इक्फा वाले हुरूफ हो तो वहां करते हैं इक्फा। तो क्या होगा, हमजा नून जेर इन, काफ अलिफ जर का, नून जबर ना, काना, ठीक है, इन काना नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ काफ देख सकते हैं इक्फा वाले हुरूफ के अंदर आ रहा है, हमें यहाँ इक्फा करना है, यानी छुपाना। इक्फा का मतलब क्या होता है, छुपाना, नून की आवाज को हमें छुपा के पढ़ना है, ठीक है। अरअयता इन काना, काना, जबर आ, लाम लाम जबर लल, अलल,
हुदा, हाफिज हु, दाल खड़ा जबर दा, यहाँ मद है, इसे हम खींचेंगे, या को नहीं पढ़ना है, ठीक है। दा खड़ा जबर दा, वक्फ की सूरत में हम इस तरह पढ़ेंगे, दाल खड़ा जबर दा, यहाँ पर 2 से 3 सेकंड के लिए खींचेंगे। अरअयता, अरअयता इन काना अलल हुदा, अलल हुदा, हु दा, हु को जल्दी पढ़ना है, हाफिज हु, दाल खड़ा जबर दा, ठीक है, यहाँ मद है तो हुदा, हुदा, तो इस तरह हम पढ़ेंगे। आने जबर लाम, लाम जबर लल, इसको नहीं पढ़ना है, ये दोनों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। या और अलिफ को नहीं पढ़ना है, साकिन को पिछले वाले मुतहर्रिक हुरूफ के साथ मिलाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, लाम को लाम के साथ मिलाएंगे, लाम, लाम जबर लल, आ लल, आ लल, ठीक है। इनको हलक से निकालना है, आ लल। अरअयता, अरअयता, अरअयता इन काना अलल हुदा, आ लल, आ हलक से निकालना है, आ लल हुदा, अलल हुदा, ठीक है। ताको खींचेंगे आप, यहाँ वक्फ की सूरत में इसी तरह पढ़ेंगे। हमजा व जबर औ, हमजा जबर आ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने लीन किया, औ पढ़ा, ठीक है, औ, अ म र, अ म र को पढ़ना है मोटा, अ हमजा पढ़ना है इसे, अ म र, अ म र, औ अ म र, औ अ म र, ठीक है। बा ताजिर बित, ता काफ जबर तक, बित तक, वाव खड़ा जबर वा, बित तकवा, काफ पर होगा कलकला, ठीक है। आपको बताया था 5 हुर्फों पर कलकला होता है, या काफ है इसके ऊपर साकिन है, यहाँ भी कलकला करेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, बा ताजिर बित, अलिफ को और लाम को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, बा ताजिर बित, ता काफ जबर तक, वाव खड़ा जबर वा, बित, बित तकवा, बित तकवा, बित तकवा, ठीक है। औ अमरा, औ अमरा बित तकवा, बित तकवा, तरह पढ़ेंगे, ठीक है। औ अमरा बित तकवा, वाव को खींचना है, इसको नहीं पढ़ना है, वाव खींचते हैं, इस तरह वाव करेंगे तो इसी तरह पढ़ेंगे, बित तकवा, काफ पर कलकला, तकवा। हमजा जबर आ, रा जबर आ, हमजा या जबर आई, ता जबर ता, आरा आई ता, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाएगा, लीन, आई ता, आरा आई ता, ठीक है। कलकला वाले हुरूफ टोटल 5 होते हैं, कलकला के हुरूफ टोटल 5 होते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर, काफ, तो, बा, जीम और दाल, इन 5 हुर्फों पर हम कलकला करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, जब साकिन आता है, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पर काफ है, यहाँ देख सकते हैं काफ, तो क्या करेंगे हम यहाँ कलकला करेंगे, कलकला यानी आवाज इको की तरह पढ़नी है, ठीक है, हिला के पढ़नी है, कलकला करनी है, यानी यहाँ पर आवाज लौट कर आएगी, ठीक है। बित तक, तक सब पढ़ना है, तक, ठीक है, तकवा, ये आवाज डबल इको करती है, ठीक है, तकवा, इस तरह से इसको ही कहते हैं कलकला करना। तो 5 हुर्फों पर कलकला होता है, काफ, तो, बा, जीम और दाल। समझ आ गया कलकला के बारे में। मैक्सिमम लोगों को कलकला के बारे में नहीं पता है, तो हमें वहां पर करना होता है कलकला, ठीक है। अरअयता, यहाँ भी करेंगे लीन, हमजा जबर आई, ता जबर ता, अरअयता, रा को मोटा, अरअयता, अरअयता। नून साकिन के बाद यहाँ भी फिर से देख रहे हैं काफ है, तो हम यहाँ भी करेंगे इक्फा, नून को पढ़ेंगे नहीं इस तरह, इन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इन, हमजा नून जेर इन, यहाँ पर किया जाएगा इक्फा, इन। काफ जाल जबर कज, जाल जबर जा, इन कज़्ज़ब, काफ जाल जबर कज, जाल जबर जा, कज़्ज़बा जबर बा, कज़्ज़ब, कज़्ज़ब, ठीक है। वत, वल्ला, वत, वाव लाम जबर वल, लाम खड़ा जबर ला, वत वल्ला, ठीक है। लाम को खड़ा जबर है, खींचा जाएगा, वफ की सूरत में आपको बताया कि हम चेंज नहीं करते, उसी तरह पढ़ेंगे, साकिन नहीं करेंगे यहाँ पर। अरअयता इन कज़्ज़ब, कज़्ज़ब, वतवल्ला, वतवल्ला, ठीक है। एक बार पढ़ते हैं इसको, अरअयता,
अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, कज़्ज़ब, ठीक है, जाल को पढ़ना है बारीक, जाल को ऊपर वाले दांत के पास अपनी जो जबान की नोक है वहां पर रखेंगे तो जाल अदा होते हैं। काफ जाल जबर कज, जाल जबर जा, कज़्ज़ा, बा जबर बा, कज़्ज़ब व तवल्ला, कज़्ज़ब व तवल्ला। हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, आलम, हमजा को पढ़ेंगे, अलिफ को पढ़ेंगे हमजा, ठीक है, अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत लग जाती है तो उसे हमजा पढ़ा जाता है। हमजा जबर आ, लाम मीम जबर लम, आलम, या आइन जबर या, लाम मीम जबर लम, अलम या लम, ठीक है। मीम साकिन के बाद या है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा है तो यहाँ क्या करेंगे, इख्फा शफवी होगा और यहाँ इजहार शफवी होगा, ठीक है। मीम साकिन का 3 रूल है। मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई भी हुरूफ आते हैं तो वहाँ पर इजहार शफवी करते हैं। मीम साकिन के बाद बा आता है तो इख्फा शफवी करते हैं। मीम साकिन के बाद अगर मीम आता है तो वहाँ पर हम करते हैं इदगाम शफवी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इख्फा शफवी और यहाँ पर करेंगे इजहार शफवी, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह पढ़ेंगे, इंशा कज़्ज़ब, जी इंशा कज़्ज़ब। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इख्फा इजहार, यहाँ पर इख्फा, ठीक है। अलम यहाँ पर इजहार करना है, नून मीम की आवाज का, अलम पढ़ना है, अलम। इन कज़्ज़ब कहाँ पर है, अलम या लम, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा है तो क्या करा जाएगा, यहाँ पर इख्फा शफवी, ठीक है। अलम या अलम, यहाँ पर इजहार, अलम यहाँ पर कुछ गुन्ना नहीं, यहाँ पर हमें गुन्ना करना है, ठीक है। अलम या अलम, यहाँ पर लम इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। लम बी अन्नल्लाह, बी अन्नल्लाह, ठीक है। यहाँ क्या होगा, लफ्ज अल्लाह से पहले जबर है तो यहाँ पढ़ेंगे मोटा पढ़ना है, ठीक है, पूर्व पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर गुन्ना करना है, हमजा नून जबर अन, नून लाम जबर नल, लाम खरा जबर ला, हा जबर हा, यहाँ गुन्ना और यहाँ पर पूर्व पढ़ना है, ठीक है। लाम को पूर्व पढ़ना है, मोटा पढ़ना है। यालम बी अन्नल्लाह, बी अन्नल्लाह, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पर जब भी नून पर तस्दीद हो तो गुन्ना करते हैं, ठीक है। और लफ्ज अल्लाह से पहले जबर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। और लफ्ज अल्लाह से पहले जेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे बिस्मिल्लाह पर जब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तो वहाँ बारीक पढ़ते हैं, जब अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नून के ऊपर जबर है, नल्लाह, यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ भी मोटा पढ़ना है, ठीक है। अलम या अलम, यहाँ पर हमें नहीं रुकना, यहाँ पर इख्फा नहीं करना, यहाँ पर करना है, ठीक है। देख सकते हैं आप दोनों सेम है, मीम साकिन, लेकिन क्यों हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वाले हुरूफ को हम देख रहे हैं। इसके बाद वाले हुरूफ क्या है, या है तो यहाँ पर इजहार होगा, या मीम साकिन के बाद बा है तो यहाँ पर इख्फा होगा, ठीक है। मीम साकिन का रूल है ये, अलम या अलम बी अन्नल्लाह, बी अन्नल्लाह, यरा, रा को खरा जबर है, खींचा जाएगा, रा खरा जबर रा, ये नहीं पढ़ेंगे, यरा, ठीक है। समझ आ गई, तो फिर से एक बार पढ़ते हैं, अलम या अलम, अलम या अलम, यहाँ पर हमें इख्फा करना है, या अलम बी अन्नल्लाह यरा, बी अन्नल्लाह यरा, ठीक है। यरा, रा को मोटा पढ़ना है, यरा, यहाँ पर जल्दी से अफजल्ला को पढ़ के जल्दी से इधर आना है, ठीक है। बी अन्नल्लाह यरा, काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ जल्ला, कल्ला, लाम को खींचेंगे और लाम अलिफ के जबर ला पढ़ेंगे, ठीक है। जबर है फिर भी क्यों खींचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलिफ है, ठीक है। अलिफ के साथ मिलाना है जबर को, तब ये खींचा जाता है, लाम अलिफ जबर ला, ठीक है। उस लोग बोलेंगे कि जबर है तो क्यों खींचे, तो यहाँ अलिफ है, इसको मिलाना है, लाम अलिफ जबर ला, काफ जबर क, लाम अलिफ जबर ला, कल्ला, लाम जबर ला, या हमजा लाम जेर इल, ठीक है। हमजा को लाम के साथ मिलाना है, ये नून आपको दिख रहा है, इससे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नून इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, बगैर गुन्ने के इदगाम होगा, ठीक है।
नून का इसके अंदर मर्ज होगा, लेकिन हुन्ना की आवाज, नून की आवाज नहीं आएगी। ला इल्लम, कल्ला, ला इल्लम, ला इल्लम, हमजा लाम जेर इल, लाम मीम जबर लम, इल्लम, नून को हमें आवाज नहीं आनी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मर्ज होगा और बगैर हुन्ने की आवाज हमें पढ़ना है। हमजा लाम जेर इल, लाम मीम जबर लम, कल्ला ला इल्लम। इसे क्या कहते हैं? इदगाम बगैर गुन्ने को। इसका नाम क्या है? इदगाम बगैर गुन्ना, ठीक है। हमजा लाम जेर इल, लाम मीम जबर लम, इल्लम, ला इल्लम। जब ये नून साकिन के बाद लाम आए या फिर रा आए तो हम करते हैं वहां पर बगैर गुन्ने के इदगाम, ठीक है। अगर लाम या आएगा या तो रा आएगा तो वहां पर इस तरह पढ़ेंगे। दो सूरतों में इस तरह पढ़ा जाएगा, लाम और दूसरा रा, दो सूरतों में इस तरह पढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो आएगा तो वहां पर हम गुन्ना करेंगे, ठीक है। कल्ला ला इल्लम, ला इल्लम, या नून जबर यन, ता जबर ता, हाजिर ही, यंतही। यहाँ पर क्या करना है? इक्फा करना है। नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर हम नून को छुपाएंगे, यंतही, यंतही, ठीक है। यंतही नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि इक्फा वाले हुरूफ यहाँ पर इसके बाद भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? ता है। इक्फा वाले हुरूफ 15 हुरूफ जो आपको बताया था वो 15 हुरूफ यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इक्फा करेंगे, यंतही, यंतही। कल्ला ला इल्लम यंतही, ला इल्लम यंतही, यंतही, ठीक है। यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और यहाँ पर वसल भी कर सकते हैं, दोनों सूरतें कर सकते हैं आप, ठीक है। ये 5 का मतलब होता है कि यहाँ पर आप रुक भी सकते हैं और वसल भी कर सकते हैं। लाम अलिफ का मतलब होता है आप यहाँ पर मिला के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम मिला के पढ़ेंगे, यंतही, लनस्फअम, ला नून सीन जबर नस, ला नस, फा जबर फा, ला नस फा, ठीक है। यहाँ पर तनवीन के बाद एक और रूल आ रहा है, इकलाब का रूल। तो बहुत से लोगों को इकलाब के बारे में भी नहीं पता है। तो इकलाब का रूल क्या है? जब भी तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद बा हुरूफ आएंगे तो हम वहां करेंगे इकलाब, यानी हम मीम के साथ पढ़ना है हमें। ये जो आपको मीम दिख रहा इसके साथ हमें पढ़ना है, ठीक है। आइन मीम दो जबर अम, ठीक है। आइन मीम दो जबर अम पढ़ना है, यहाँ पर अन नहीं पढ़ेंगे। आइन दो जबर अन नहीं पढ़ना, आइन को मीम के साथ मिलाना है। इसे क्या कहते हैं? इकलाब करना कहते हैं। इकलाब का कायदा है, क्यों? तनवीन या नून साकिन के बाद जब भी हुरूफ बा आएगा तो ये वाला रूल हम करेंगे, ठीक है। लनस्फअम, लनस्फअम, यहाँ पर गुन्ना करेंगे, लनस्फअम, लनस्फअम। बा नून जेर बिन, नून अलिफ जो ना, बिन्ना, बिन्ना, ठीक है। इसके बीच में जो आपको दिख रहा है इसे नहीं पढ़ना है, बा को नून के साथ मिलाना है। बिन नून अलिफ जो ना, बिन, गुन्ना करेंगे, उसके बाद अलिफ के साथ मिला के खींचना है। बिन नासिया, स्वाजेसी या जबर या हा बन जाएगा। ये ता क्या बन जाएगा? हा में बदल जाएगा। जब वफ करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाता है? ये हा बन जाता है। जब भी ता को पर वफ करते हैं तो हा में बदल जाएगा, जेर साकिन में तो क्या हो जाएगा? हा पढ़ा जाएगा। बिन नासिया, बिन नासिया, पहले गुन्ना फिर खींचना, फिर सी, स्वाजेर सी मोटा, स्वाजेर सी या हा। बिन नासिया, बिन नासिया, स्वाजेर सी या हा, या। नून अली जबर ना, स्वाजेर सी, नासी, या जबर या, ता दो जेर तीन, नासियतिन। या क्या करना है हमें? इक्फा करना है। क्यों? कि यहाँ पर काफ दिख रहा है आपको, तो क्या करेंगे? इक्फा करना है। यहाँ पर भी हमें इसी तरह पढ़ेंगे, नून की आवाज छुपा के, ठीक है। नासियतिन, काफ अलिफ जबर का, जाल जेर दी, काजी, बा जबर बा, ता दो जेर तीन। यहाँ पर होगा इजहार, यहाँ होगा इक्फा, यहाँ होगा इजहार, यहाँ होगा इक्फा। तो आपको हमने रूल बताया, किसी को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हमने समझाया था इक्फा और इजहार को, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्फा, यहाँ पर करेंगे इजहार। क्यों करेंगे? क्योंकि तनवीन के बाद काफ आ रहा है तो यहाँ पर इक्फा होगा, तनवीन के बाद खा आ रहा है तो यहाँ क्या होगा? इजहार होगा। खा क्या है? हुरूफे हल्की है, हलक से निकलने वाले हुरूफ है खा, तो क्या होगा? इजहार होगा। 6 हुरूफ आपको बताया था कि 6 हुरूफ जब होंगे हुरूफे हल्की
तो हम वहाँ क्या करते हैं, इजहार करते हैं। 15 हरूफ होंगे, हरूफ इख्फा, तो हमें क्या करते हैं, इख्फा करते हैं, ठीक है। यहाँ करेंगे इख्फा, यहाँ करेंगे इजहार। काजिबतिन, काजिबतिन, खा अलिफ ज़बर खा, तो ज़रती खातिया, हमजा ज़बर आ, खाती, हमजा ज़बर आ, ता दो ज़ेर तीन, तो यहाँ ता दो ज़ेर तीन क्या बन जाएगा, साकिन बन जाएगा। ता क्या बन जाएगा, हा बन जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे, हमजा ज़बर आ और ये हा, आह आह, इस तरह पढ़ेंगे, आ हा आह। खातिआ, खातिआ, इस तरह पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे तो, ठीक है। नासियतिन, नासियतिन, काजिबतिन, 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 यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, ती और तीन, यहाँ पर इख्फा, यहाँ इजहार। नासियतिन, काजिबतिन, खातिया, खातिया, यहाँ पर हा में बदल जाएगा। तीन रूल है, आपको देख सकते हैं, तीनों पर सेम चीज बना हुआ है, लेकिन हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर करना है तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर हा, यहाँ पर हा में बदल जाएगा ये आह, ती आह। तो यहाँ पर तीनों में आप देख सकते हैं, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो बहुत से लोग क्या पढ़ेंगे, सेम पढ़ेंगे, इसे नहीं पढ़ना। तो हमें सब रूल को फॉलो करना है, ठीक है। सब रूल को फॉलो करके आप पढ़ेंगे। और किस तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर इजहार इख्फा, यहाँ पर इजहार, यहाँ पर ता हा में बदल जाएगा, और यहाँ पढ़ेंगे हा आह। नासियतिन, काजिबतिन, काजिबतिन, खातिया, खातिया, तो ताजरती या, खातिया। लाम जबर फल, या दाल जबर यद, फल यद, दाल पर हो जाएगा कलकला, ठीक है। दाल पर कलकला होगा, क्योंकि दाल पर साकिन है, कलकला वाले हुरूफ है, कलकला करेंगे। यद, फल यद, फल यद, आइन पेश ओ, फल यद ओ, फल यद ओ, नादिया, नादिया, या जबर या, हा में बदल जाएगा ये दो पेश, यहाँ पर उल्टा पेश नहीं पढ़ा जाएगा, ये साकिन हो जाएगा। क्या करेंगे, फल यद ओ, फल यद ओ, नादिया, फल यद, यहाँ पर कलकला, यद ओ, आइन पेश ओ, फल यद ओ, नादिया, नादिया। सीन जबर दाल जबर नद, यहाँ भी हमें करना है कलकला, जिस तरह यहाँ पर दाल पर हमें कलकला किया, यहाँ भी करना है कलकला। दाल पर जब भी आप साकिन देखेंगे तो करेंगे कलकला। नून दाल जबर नद, सनद, सनद, आइन जा पेश उज, सनद उज, जा जबर जा, सनद उज जबानिया, ज़बानिया, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, जा जबर जा, बा अलिफ जबर बा, नून जे नी, या जबर या, ता जबर ता, ये क्या बन जाएगा, हा में बदल जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसे, सनद उज, सनद उज, उज जबानिया, जबानिया, सनद, सनद उज, सनद उज जबानिया। क्या करेंगे, यहाँ पर हम कलकला, दाल पर कलकला, और यहाँ आइन को जा के साथ मिलाना है, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ना है। आइन जा पेश उज, जा जबर जा, उज बानिया, सनद उज जबानिया, जबानिया, ठीक है। यहाँ पर हा में बदल गया, यहाँ पर ता हा में बदल गया। कल्ला, काफ लाम जबर कल, लाम अलिफ जला, कल्ला, यहाँ का अलिफ साथ मिला खींचना है। लाम अलिफ जला, ता पेश तू, ता अंजरती, तू ते हु, तू ते हु, ठीक है। ता को आइन के साथ मिलाना है, ते हु। कल्ला ला तू ते हु, तू ते हु, ता को बारीक, तो मोटा, ता बारीक, ता यहाँ पर तो, ता और तो आइन जेर तो, आइन हमजा पेश ओ, हा पेश हो, ठीक है। ला तू ते हु, तो ते हु, ठीक है। वाजे करके पढ़ेंगे, हर एक हुर्फ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाफिज हु, हा को भारी आवाज में पढ़ेंगे, हाफिज हु। और वाव सिन जबर वस, जीम दाल पेश जुद, वस जुद, दाल पर क्या होगा, कलकला, जीम दाल पेश जुद,
वसजुद, अलिफ नहीं पढ़ना है, वाव को सीन के साथ मिलाना है, वसजुद, वाव काफ जबर वक, यहाँ भी अलिफ नहीं पढ़ना है, वक्तरिब, वक्तरिब, रा को बारीक पढ़ेंगे, रा को बा के साथ मिलाएंगे और बा पर हो जाएगा कलकला, ठीक है, वक्तरिब, वक, यहाँ पर भी कलकला, बा पर भी कलकला, दोनों पर कलकला होगा, सीन के साथ मिलाएंगे, वाव को सीन के साथ मिलाएंगे, अलिफ नहीं पढ़ना है, और वसजुद वक्तरिब, दाल पर कलकला, काफ पर कलकला, बा पर कलकला, 5 हुरूफ होते हैं टोटल, तो यहाँ पर 3 हुरूफ मौजूद हैं, ठीक है, दाल, काफ और बा। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको अब सजदा वाजिब हो गया, आपको सजदा तिलावत करना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सजदा तिलावत की सजदा वाली आयत पढ़ी है, ठीक है, और सूरह अलक में आखिरी जो आयत है सजदा वाली आयत है, तो यहाँ पर हमने सजदा करना वाजिब है, ठीक है, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों पर। तो हम क्या करेंगे, वाव को सीन के साथ मिलाएंगे, वस, जीम को दाल के साथ मिलाएंगे, जुद, वसजुद, वक्तरिब, वक, काफ पर कलकला, बा पर कलकला, दाल पर कलकला, वसजुद वक्तरिब, वसजुद वक्तरिब। अगर आप सजदा आयत वाली सजदे वाली आयत को अगर कितने भी बार पढ़ते वक्त अगर याद करते वक्त, तो आपको एक बार सजदा करने से भी हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी लोगों ने सुना है सब लोग सजदा कर लेंगे, ठीक है, वाजिब है सजदा करना, तो आप जब नमाज पढ़ेंगे तब सजदा कर लेंगे, ठीक है, अभी नहीं कर सकते तो बाद में जब नमाज पढ़ेंगे तब सजदा कर लेंगे। एक्स्ट्रा सजदा की तिलावत किस तरह किया जाता है, खड़ा होकर, जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उस तरह खड़ा होना है और अल्लाह अकबर करते हुए नीचे जाना है, 3 बार सुबहान रब्बियल आला करना है, उसके बाद अल्लाह अकबर करके उठ के बैठ जाना है, ठीक है। इस तरह आपका कंप्लीट हो गया सजदा तिलावत। जब भी आप सजदा आयत वाली सजदा पढ़ेंगे, सजदा वाली आयत, तो क्या करेंगे, सजदा जरूर करेंगे। टोटल कितने सजदा आयत है, 14 है, कलाम पाक में 14 जगह पर आपको करना है सजदा वाली आयत को पढ़ेंगे तो, ठीक है। वसजुद वक्तरिब, काफ पर कलकला, बा पर कलकला, दाल पर कलकला, 3 हुर्फों पर हमें यहाँ कलकला करना है, ठीक है। टोटल 5 हुर्फों पर होता है, 3 यहाँ पर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, ला तुतिअहु वसजुद वक्तरिब, वसजुद वक्तरिब, ठीक है, वसजुद वक्तरिब। उम्मीद है सबको समझ आ गई है। तो अब हम पढ़ेंगे तर्जुमा, ठीक है। अब हम तर्जुमा पढ़ेंगे सूरह अलक का। आयत नंबर, सूरह नंबर 96। आप लोग सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग तर्जुमा भी जरूर सुनें, ठीक है। जब हम तर्जुमा सुनेंगे, ट्रांसलेशन सुनेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने इसमें अल्लाह पाक ने इसमें क्या मैसेज दिया है हमें, तो जब इसलिए आप लोगों को तर्जुमा सुनना चाहिए, ठीक है। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पढ़ो अपने रब के नाम से, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया आदमी को खून की फुटक से बनाया, आदमी को खून की फुटक से बनाया। तो सबसे पहले आयत में क्या फरमाया अल्लाह पाक ने कि पढ़ो, पढ़ो अल्लाह के नाम से, अपने रब के नाम से, रब के नाम से जिसने पैदा किया, खलक, जिसने पैदा किया, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया। तो सबसे पहली वही जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आई थी, सबसे पहली वही क्या है, ये वाली लाइन है, ठीक है। सबसे पहला लाइन अल्लाह पाक ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहली वही की थी, तो ये स्टार्ट यहाँ से हुआ था, ठीक है, इक़रा, इक़रा। तो इस तरह सबसे पहली आयत का तर्जुमा क्या है, पढ़ो अपने रब के नाम से। अल्लाह पाक ने मैसेज भेजा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या क्या मैसेज भेजा था, पढ़ो अपने रब के नाम से, ठीक है। सजदा आयत है, कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपका
सजदा लिखा होगा, ठीक है, और इस तरह से आपका लाइन भी बना होता है। सजदा का आपको वर्ड लिखा होगा और उसके ऊपर में लाइन या नीचे में आपको लाइन होगा और साइड में भी लिखा होता है, ठीक है, साइड में भी कलामी पाक में लिखा होता है सजदा क्या आयत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाइन बना होगा, सजदा लिखा होगा और साइड में भी लिखा होगा सजदा, सजदा इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सजदा की आयत है। तो सबसे पहली वही क्या आई थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह पाक ने क्या भेजा था मैसेज, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फुटक से बनाया। आदमी को कैसे बनाया? खून की फुटक से बनाया। फिर से दूसरी तीसरी आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया पढ़ो। इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो, ठीक है, पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम है। तुम्हारा रब क्या है? सबसे बड़ा करीम है। रब्बुल अकरम, सबसे बड़ा करीम है। जिसने कलम से लिखना सिखाया, अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम, जिसने कलम से लिखना सिखाया। सबसे पहले पढ़ने की बात हुई, उसके बाद लिखने की, ठीक है, देख सकते हैं आप तरतीब। जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लमल इंसाना मालम यालम, आदमी को सिखाया जो नहीं जानता था। हाँ हाँ, बेशक आदमी शरकशी करता है। आदमी क्या करता है? शरकशी करता है। इस पर कि अपने आप को गनी समझ लिया। इस पर कि अपने आप को क्या समझता है? गनी समझ लेता है। बेशक तुम्हारा रब ही की तरफ फिरना है। इन्ना इला रब्बिका रुजआ, बेशक अब तुम्हारे रब की तरफ ही फिरना है, ठीक है। अपने आप को क्या समझ लिया? गनी समझ लिया। बेशक तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ फिरना है। इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक, बेशक तुम्हारे रब की ही तरफ फिरना है। भला देखो तो जो मना करता है, भला देखो तो जो मना करता है बंदे को जब वो नमाज पढ़े, बंदे को जब वो नमाज पढ़े, भला देखो तो अगर वह हिदायत पर होता, भला देखो तो अगर वो हिदायत पर होता, या परहेजगारी बताता, या परहेजगारी बताता तो क्या खूब था, क्या खूब था। भला देखो तो अगर झुठलाया, भला देखो तो अगर झुठलाया और मुंह फेरा तो क्या हाल होगा, क्या न जाना, क्या हाल होगा क्या न जाना कि अल्लाह देख रहा है, कि अल्लाह देख रहा है। इन्ना रब्बका यरा, अल्लाह देख रहा है। हाँ हाँ अगर बाज ना आया, हाँ हाँ अगर बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, ठीक है। अगर बाज नहीं आया तो क्या करेंगे अल्लाह पाक? पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी झूठी खताकार, कैसी पेशानी झूठी खताकार। अब पुकारो अपने मजलिस को, अभी हम सिपाहियों को बुलाते, अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। हाँ हाँ उसकी ना सुनो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ। आखिर में अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि उसकी ना सुनो, मानी जो तुमको मना करता है नमाज पढ़ने से, उसकी ना सुनो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ। अल्लाह से करीब होने का रास्ता क्या बताया है अल्लाह पाक ने यहाँ पर? सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, ठीक है। उसकी ना सुनो, किसकी? जो तुम्हें मना करता है नमाज पढ़ने से, उसकी ना सुनो और क्या करो? सजदा करो और अल्लाह के करीब हो जाओ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने यहाँ पर सूरह अलग का तर्जुमा पढ़ा, एक बार और पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको समझ नहीं आए फिर से एक बार सुनेंगे। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, आदमी को खून की फूटक से बनाया। पढ़ो और तुम्हारा रब ही सबसे बड़ा करीम, जिसने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया जो वह न जानता था। हाँ हाँ बेशक आदमी सरकशी करता है, इस पर कि अपने आप को गनी समझ लिया। बेशक तुम्हारे रब की ही तरफ फिरना है। भला देखो तो जो मना करता है बंदे को जब वह नमाज पढ़े। भला देखो तो अगर वह हिदायत पर होता या परहेजगारी बताता हो तो क्या खूब था। भला देखो तो अगर झुटलाया और मुंह फेरा तो क्या हाल होगा। क्या न जाना कि अल्लाह देख रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने क्या फरमाया कि जो लोग तुम लोग कर रहे हो सब कुछ अल्लाह देख रहा है। हाँ हाँ अगर बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। तो यहाँ अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, पहले कि अल्लाह पाक देख रहे हैं, उसके बाद फरमाया कि अगर तुम लोग बाज नहीं आया तो क्या करेंगे, पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। कैसी पेशानी झूठी खताकार, वो पेशानी कैसी, झूठी और खताकार पेशानी। अब पुकारे अपनी मजलिस को, अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं उन लोगों को जो लोग रोकते हैं कि पुकारो अपने मजलिस को, अभी हम सिपाहियों को बुलाते हैं। अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि हम सिपाहियों को बुलाते हैं। हाँ हाँ उसकी ना सुनो और सजदा करो और हमसे करीब हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक के करीब होने का क्या रास्ता है, सजदा करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस सूरह से क्या समझ में आया, सबसे पहले अल्लाह पाक ने फरमाया कि पढ़ो, और उसके बाद लिखने की बात बताई कि लिखाया। अल्लाह पाक करम वाला है, अल्लाह पाक करीम है, बहुत बड़ा करीम है। इस तरह से अल्लाह पाक ने इसमें बहुत सारी बातें बताई है, तो इससे हमें समझने की बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, तो जो लोग झूठ बोलते हैं, खताकार हैं, उनको अल्लाह पाक क्या करेंगे, पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। और इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, सजदा करनी चाहिए और अपने रब के करीब हो जानी चाहिए। तो अब बंदा अल्लाह ताला के सबसे करीब कब होता है, जब वो सजदे में होता है। ठीक है, तो आप सब लोग अभी सजदा कर लेंगे, सजदे तिलावत, क्योंकि सजदे तिलावत वाजिब है। ठीक है, सुनने वाले पर भी और पढ़ने वाले पर, दोनों पर ही सजदा करना वाजिब है। तो आप लोगों को सजदा कर लेनी चाहिए, और जब भी आयत पढ़ेंगे सजदा वाली तो वहाँ पर आप सजदा जरूर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई तर्जुमा। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं फिर से पढ़ूंगी, और अगर समझ आ गई तो अभी हम बंद करेंगे। ठीक है, सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक रसूलुहुन नबीयुल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोगों की तारीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ अल्लाह ताला का, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जिन लोगों ने भी अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सब लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तब आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप लोग ज्वाइन कर सकेंगे नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग देखने वाले हैं, और जितने भी लोग हैं दुनिया में, सबको अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।